मेरे कंटेंट के बेस्ट आइडियाज़ मुझे तब आते हैं जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ. Is the first time when you sacrifice, right? Like पहली बार जिम पहुंचना, पहली बार स्वीट को ना बोलना. Exactly, that's so true. And as you said ना कि 20 चेंजेस करने की जगह पे पहले एक चेंज पे फोकस करो. I think that's really important. 4 लोग क्या कहेंगे से बचने के लिए उन 2 लोगों को पकड़ लो जो आपके साथ रहेंगे. I'll only grow forward, upward, but not backward. मतलब यार कैसे तुम खाने को छोड़ के ड्राइंग करके तो नहीं खुश रह सकते. I've reached a point wherein I know how to create a balance between what I want to eat and what I need to eat. हमारे यहाँ ना एक नोशन है कि पतला means fit. Welcome back to another episode of What the Health. In this episode, we have Gunjan Taneja, also called Gunjan Shouts. She's a fitness content creator with 1.4 million subscribers on YouTube and founder of Fitness Company. This episode, we have discussed her PCOS weight loss journey, the importance of exercise, diet, cheat days. सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि सक्सीड कैसे करें वेट लॉस में. मैंने पर्सनली बहुत सीखा है. If you need inspiration and want to get started today, and if you are someone who has constantly been struggling and failing with weight loss, then this episode is a must watch. Enjoy our full conversation. I love this thing about you, Gunjan, that you are not just a fitness expert who has built this amazing more than 1 million follower YouTube channel. You have gone through that entire transformation of being unhealthy to healthy, unfit to fit. And I need your help today to really do what the health to every myth out there, and we should today sit here and bust them out. Hi Saloni. So first of all, thanks for having me here. Really loving the energy and especially all the things that we are going to discuss today. I'm really looking forward to it because busting myths is, I think, the need of the hour. There is just so much information flowing in. And I've been on the other side, as you said, like I've covered my own journey. So yes, there are a lot of things which I can contribute, I can share. So इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बात करते हैं कि समझ नहीं आता करना क्या है, राइट? एंड टू बिगिन विद, राइट, ऑल दिस 7 दिन में 5 किलो उतार दो वाली क्लिक बेटी चीजें, आपका क्या कहना है गुंजन? What is reality? Let's start with this. So you know, the answer lies right in the question which you have asked. It is nothing else but clickbait. And unfortunately, I don't know why, but a lot of people are using these clickbaits, but they don't understand the impact of it. लोगों के perceptions बहुत बुरी तरह से change हो रहे हैं. लोगों को लगता है कि शायद ये 7 दिन में 5 किलो is really a thing. और वो health की definition से बहुत दूर है. Like, this is not possible. 7 दिन में 5 किलो is not sustainable. It's not healthy at all. And if we talk about like real health, अगर हम बात कर रहे हैं वजन घटा लो और चर्बी उतार दो की, आई डोंट नो मतलब उसमें क्या, बट इट इज नॉट हेल्दी. I agree. So I also had like this weight issue, especially because I had a baby, and I think every female जो I mean excluding people जो बहुत अच्छे से pregnancy manage करते, but I went to good 85 kgs when I delivered my baby, and I think it was the best thing that happened to me. क्योंकि pre-mommy Saloni was unfit, happy in her life, blessed to be skinny. और जो blessed to be skinny होते हैं ना, जो पहले से पतले होते हैं, वो सबसे unfit होते हैं. क्योंकि आप खाना खा लो तो भी ठीक है, इतना तो लगता नहीं है, मोटे तो आप हो नहीं रहे, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि जिम जाओ, लाइफ अच्छे से चल रही है. So I was so unfit that at 26 or 27 I had this major neck issue. मतलब वो आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैपटॉप पे, तो आई थिंक आई हैड दिस मेजर नेक इशू विच वॉज अनदर थिंग दैट आई मीन मोमेंट इन माई लाइफ वेयर आई रियलाइज्ड कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ फिटनेस के लिए लाइफ में. यू नो, दिस इज बिकॉज हमारे यहाँ ना एक नोशन है कि पतला मीन्स फिट. सो ये बहुत बड़ा रूट कॉज है. मतलब जो इनफैक्ट जो लोग ओवरवेट भी होते हैं उनको लगता है यार ये इसका तो सही है, ये तो पतली है. पतली है, हेल्दी है, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. पतला है, हेल्दी है ज़रूरी नहीं है. और इनफैक्ट सेम गोज पर मोटा है और हेल्दी नहीं है.
you know, weight is a different thing and health is a different aspect. We need to really understand the difference between these two. Someone can be, मतलब 75 पे अगर 75 kgs पे अगर कोई भाग पा रहा है और वही 55 वाला बंदा घुटने पकड़ के बैठा है, of course 75 kgs वाला बंदा is more fit. Let's start with this, Gunjan. Yeah. हेल्थ राइट ये होता क्या है? बिकॉज मैंने इतना सीखा है स्पेशली जब से त्राया स्टार्ट किया है कि द वर्स्ट एडवाइस दैट यू कैन गिव टू समवन इज हेल्दी रह भाई, अच्छा हेल्दी खा ले, Right. क्योंकि सबकी अपनी डेफिनेशन है, राइट? सो गुंजन, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग हेल्दी? So, like, see, if we talk about the definition of health, तो WHO और ये सब बुकिश लैंग्वेजेस की बात करें तो हेल्थ वो होती है जो आपके फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी इमोशनल फिटनेस, आपकी सोशल फिटनेस, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, दिस डिफाइंस योर हेल्थ, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट मेरे को अगर मैं पर्सनल अगर दिल से बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज़ मच मोर देन साइंस. इट्स नेचर. एक ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो साइंस से ज़्यादा नेचर है, यू नो. तो मेरे लिए हेल्थ वो है कि अगर आप अपने सारे काम अच्छे से कर पा रहे हो, अगर आप खुश हो और अगर आपको अच्छे से रात को नींद आ रही है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी. आई थिंक जस्ट टू ऐड, और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो पूरा वही दिन. अपने सारे काम अगर आप ठीक से कर पा रहे हो, यू नो, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर नॉट सैड, आपको काम करने में खुशी आ रही है, आप मजे से. So beautifully put up. You did not say कि ग्रीन खाना हेल्दी है, तेल कम खाना हेल्दी. यू सेड दैट अगर आप खुशी और एनर्जी के साथ लाइफ जी रहे हो तो आप. आई थिंक फॉर मी द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ दैट. अगर मैं खुश हूँ, अगर मुझे रात को सुकून से नींद आ रही है और मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ, आई थिंक आई एम हेल्दी. आई डोंट नीड एनीथिंग अदर देन दिस. सो नाउ मैंने आपको कहा कि द फैक्ट दैट आई रीच्ड 85 वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन लाइफ, बिकॉज कभी कभार कुछ बहुत ख़राब होता है तभी बहुत कुछ अच्छा होता है, राइट? तो मेरे लिए वो मोमेंट आ गया था कि कैन नॉट लिव दिस लाइफ, राइट? लाइक कुछ करना पड़ेगा, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर आई हैव सीन योर एपिसोड वेयर यू टेक people through your journey, right? Please tell us a little bit about when was that moment for you कि बस अब this is it. That moment for me was the moment when a lot of realizations happened. I think किसी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या फिर हम एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी एस्पेक्ट में मेंटल वेलबींग की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ रियलाइजेशन. सो हाफ ऑफ माई लाइफ, लाइक अभी तक की लाइफ में से अगर मैं हाफ ऑफ द लाइफ की बात करूँ तो मुझे रियलाइजेशन ही नहीं थी. ऐसा नहीं है उससे पहले मैंने कभी वेट लूज़ करने का ट्राई नहीं करा, मैंने बहुत शॉर्टकट्स अपनाए, मैंने बहुत उल्टे सीधे फैट डाइट्स एंड व्हाट नॉट बहुत कुछ किया. बट आई थिंक गलती मेरी ये थी कि मेरे को रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं रियल में चाहती क्या हूँ. मुझे था बस यार मुझे आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक अ सर्टन वे. दैट वॉज अ रियल प्रॉब्लम. फिर जब ये मुझे समझ में आया कि मेरी हेल्थ मेरे लिए ज़रूरी है, यू नो, जो भी हमने हेल्थ की डेफिनेशन भी डिस्कस करी. सो व्हेन दैट रियलाइजेशन हैपेंड, आई थिंक देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ. और उसके बाद इट टुक मी नो टाइम, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months आई लॉस्ट क्लोज टू 20 kgs in a very healthy way. Wow. So yeah, that was really important. So guys, whoever wants motivation, you know who to follow and what to watch to do that. But I think I completely agree. मेरे लिए भी सक्सेस तब स्टार्ट होने लगा जब मैंने गोल को वेट लॉस नहीं रखा. ठीक है, मेरे लिए ये गोल था ही नहीं कि मेरा वज़न उतरे या मेरी नेक इशू सॉल्व हो जाए. ये सब तो आउटकम्स थे. मेरे लिए एक ही गोल था कि मैं कल सुबह उठूँ और मेरे जिम पहुँचूँ या मेरी योगा क्लास पहुँचूँ. एंड आई कैन नॉट बंक. आई कैन नॉट लेट माई सेल्फ डाउन बाई नॉट रीचिंग देयर. बस एक ही गोल था, कल सुबह वाला. एंड मेरे लिए पर्सनली जैसे ही मैं वो अचीव करती गई, डे ऑन डे, मुझे समझ आया कि भाई हेल्दी होने वाली लाइफ कैसी लगती है, कैसा फील होता है, एनर्जेटिक होना क्या होता है, राइट? टुडे अगर मेरा एक हफ्ता वर्कआउट बंद हो जाए तो मैं एक गिल्ट ट्रिप होने लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब स्टिफनेस फील होने लगती है, लो ऑन एनर्जी हो जाते हूँ, इतना काम नहीं कर पाती ऑफिस में, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है. मतलब सो मेनी थिंग्स, राइट? फ्रॉम मेंटल हेल्थ टू फिजिकल. राइट. व्हेन यू टेस्ट
टेस्ट द रिजल्ट ना, कि अच्छा कैसा फील होता है व्हेन यू गो टू जिम. ये हम सुनते हैं कि यार एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और ये सब होता है, बट व्हेन यू फील इट ना, देन यू रियलाइज कि ओके सच में यार मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं. मतलब मैं वर्कआउट, मेरे कंटेंट के बेस्ट आइडियाज़ मुझे तब आते हैं जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ. और इनफैक्ट जब मैं बीच में अगर डे में अगर मैं थक रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम फीलिंग लो, आई जस्ट गो एंड 10 पुशअप्स लगाऊंगी एंड आई स्टार्ट फीलिंग बेटर. आई थिंक मुझे इस चीज़ पे बात करनी है कि इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है वेट लॉस, राइट. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि लोग इतना फेल होते हैं. मेरे आजू बाजू लोग हैं जो कंसिस्टेंटली फेल होते हैं. मैं फेल होती थी, आप फेल होते थे फॉर ईयर्स, राइट. सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या किया जा सकता है टू रियली सक्सीड, राइट. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट idea that we both just came up with, कि your goal should not be weight loss. That's an outcome. Your goal should be feeling energetic, feeling happy, and उसके लिए आप सुबह वो 1 घंटा अपने लिए निकालिए. Right, absolutely. Right? Any other ideas on what can help somebody who is right now failing? I think बहुत बड़ा गोल बनाने की जगह, if we just start focusing on small habits, I think that is gonna shape you, like literally shape you. तो छोटी छोटी हैबिट्स, उठना, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान देना. ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाना. आई अंडरस्टैंड हर किसी के लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं है, बट देन होम वर्कआउट्स. और आजकल तो इतनी वीडियोस हैं, इतना कंटेंट है. आप सिर्फ यूट्यूब स्टार्ट करो और लिखो 10 मिनट वर्कआउट, यू विल गेट इट. 15 मिनट वर्कआउट, यू विल गेट इट. 30 मिनट वर्कआउट, यू विल गेट इट. सो आप अपनी नीड बताओ, यू विल गेट वॉट यू आर लुकिंग फॉर. सो जस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर इट. ईट हेल्दी. मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगेन इतनी नॉलेज है, इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, यू नो कि हाँ क्या ठीक है क्या नहीं है. उसके बाद येस, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं उसके लिए देर आर प्लान्स, देर आर प्रोग्राम्स, बट अदरवाइज एक जनरल वेलबींग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने एक डाइटिशियन ली थी, मतलब ये खुद से करने से पहले, एट रिवाइंडिंग बैक टू 85 kgs, एंड आई टेरिबली फेल्ड एट फॉलोइंग दैट डाइट प्लान. अच्छा, व्हाई सो? एंड आई थिंक जो आपने बात बोली ना, बिग गोल एंड स्मॉल गोल, वो डाइट प्लान इतना डिफिकल्ट था और इतना डिफरेंट था मेरे एग्जिस्टिंग रहन सहन, मेरे फूड लाइकिंग से, कि इट वाज नॉट लाइक कि मुझे एक चेंज करना था, मुझे 20 चेंज करने थे वो फॉलो करने के लिए. तो मैंने उसको गिव अप मारा और बंद कर दिया. इनफैक्ट गुंजन, त्राया में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अराउंड हैबिट बिल्डिंग एंड साइंस. हम हमारे कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, बिकॉज हेयर लॉस जस्ट लाइक वेट लॉस इज नॉट 8 दिन तेल लगाओ बाल उगाओ, राइट. इट्स द सेम इक्विवेलेंट ऑफ 7 दिन में 5 किलो उतारो. बिकॉज you want weight loss and you don't want hair loss. Good one. So we've realized कि बहुत स्मॉल चीज़ें और प्रिंसिपल्स को अपनाने से पीपल कैन एक्चुअली सक्सीड एट हैबिट बिल्डिंग. और वो जब 5-6 महीने यूज़ कर लेते हैं ट्रीटमेंट, तब जाके उन्हें रिजल्ट्स दिखते हैं. तो वो एकदम से 1 महीने में नहीं होता. फर्स्ट चीज़ जो हम करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, हम इसको एक बड़े गोल से छोटे गोल्स में करते हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एक मील प्लान देने की जगह वीकली चैलेंजेस करते हैं कि लेट्स हैव अ वीक वेयर वी ईट less sugar, or have a week. So you pick one thing and you stick to it, and you celebrate and you feel proud about yourself. You pat on your back for sticking to that thing that you promised. Exactly, that's so true. And as you said ना कि 20 changes करने की जगह पे पहले एक change पे focus करो. I think that's really important. And that's what we do. मतलब जब आपने बताया कि आपके डाइट प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपकी रियल लाइफ में आप खाते हो, तो हमारा जो प्रोग्राम है और उसमें हम सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि द डाइट प्लान शुड लुक लाइक, मतलब वो एक ना बहुत ही बेसिक देसी इंडियन डाइट प्लान होना चाहिए जो घर में आप खाते हो. रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छोले, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. ऐसे नाम नहीं होने चाहिए जिनको हम ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको खरीदना बहुत टफ हो, महंगा हो. है. हाँ, सो सस्टेनेबिलिटी, आपको ऐसा ना लगे यार ये तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ और ये मैं कर नहीं सकता, वो ऐसे एलियन फीलिंग नहीं आनी चाहिए देख के. सो दैट्स व्हाट वी रियली फोकस ऑन कि यार घर की चीज़ों को खा के. एंड वी आर, हम तो इंडिया में रहते हैं, मतलब द लैंड ऑफ आयुर्वेदा. सो हमारे किचन, मतलब एज वी से द किचन इज़ आवर फार्मेसी इन इटसेल्फ. सो वी डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर. हम हेयर लॉस ट्रीट करते हैं, बट आई थिंक वी आर द ओनली हेयर कंपनी दैट एक्चुअली गिव्स अ डाइट प्लान और सजेशंस टू पीपल, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट आयुर्वेदा और किचन इज़ योर फार्मेसी, राइट. आप खाने में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो आपकी
हेल्थ पे Exactly. फोकस करे, राइट? गोइंग बैक टू कंसिस्टेंसी, राइट? Yeah. बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि और क्या किया जा सकता है टू सक्सीड. So we have talked about sustainability. So don't try to do something or don't try to be someone you're not. Stay connected to your roots. Then I would say one thing which really helped me to stay consistent and to stay motivated was having set points. So I'll explain what set points are. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे what is my goal, like where do I want to reach. तो मैंने अपने आप से ये डिसाइड करा कि I'll have some set points for myself. विच मीन्स कि अगर आज मैं लेट्स से 10 पुशअप्स कर पा रही हूँ, तो मैं किसी भी गिवन डे वो 10 पुशअप्स कर पाऊँ. आई शुड नेवर गो बैक टू 9 पुशअप्स एंड फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन कि यार मैं 10 नहीं कर पा रही हूँ. आई विल ओनली ग्रो फॉरवर्ड, अपवर्ड, बट नॉट बैकवर्ड. सो दैट इज नाउ माई सेट पॉइंट. अगर मैं 12 तक पहुंच गई हूँ तो वो 11 नहीं होने चाहिए, वो 12 हो या 15 हो. सो मेजरमेंट एंड ट्रैकिंग. एग्जैक्टली. वाओ. सो मतलब आज की डेट में मेरा सेट पॉइंट है कि मैं एनी गिवन डे 20 पुशअप्स ऐसे लगा सकूँ बिना सांस फूले. तो वो मेरे को अगर आप अभी बोलो या जब मर्जी बोल दो, बट अगर वो कभी 20 से 19 हुआ ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी कि क्यों नहीं गुंजन, यू आर नॉट डूइंग राइट, समथिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू चेक योर सेल्फ. आई थिंक दिस इज़ ग्रेट. मैं कल से ही करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये नहीं किया है. सो दिस इज़ सुपर्ब. समथिंग दैट मेरे लिए बहुत काम किया इन कंसिस्टेंसी इज़ फाइंडिंग फ्रेंड्स who want to work out with you and who are way more sincere than you. So Yes. COVID में मैंने मेरी weight transformation story was during COVID, right? So COVID में मेरे building में 2 friends है who are very close friends. हमने बोला चलो हम तीनों मिलके घर पे शुरू करते हैं रोज सुबह, right? And they are those friends जो no matter what will reach your house in the morning. मैं उनको मैसेज करती हूँ यार आज तबीयत खराब है, आज मैं नहीं करूँगी. वो रूम खोल के मुझे बेड से उठाते हैं कि तू कर लेगी, हमको पता है तू कर लेगी, आजा आजा. एंड व्हेन यू हैव दोज 2 people और 1 person जो इट कैन ऑल्सो गो रॉन्ग. इन द पास्ट इट हैज ऑलवेज गॉन रॉन्ग कि चल हॉट चॉकलेट पीने चलते हैं rather than reaching the gym. So but finding that person who is and it need not be your friend, it could be some stranger who is into fitness, but tagging along to that person can really help you succeed because you need that support and push initially. That's so true. So 4 लोग क्या कहेंगे से बचने के लिए उन 2 लोगों को पकड़ लो जो आपके साथ रहेंगे. Fair enough. And I think एक special connection बन जाता है उन लोगों से जिनके साथ आप workout करते हो, because वो आपका end of the day best time of the day बन जाता है. It's like your responsibility partners, you know, you can actually vouch on them. So Gunjan, your amazing story of losing 20 kgs in 3 months, right? We spoke a lot about consistency, but I'm sure बहुत सारे sacrifices करने होंगे, right? Gunjan before 2019 and Gunjan post 2019, I'm sure are 2 different people. Absolutely, yes. So tell us about क्या sacrifices आपने किए और what is your new Gunjan? How is new Gunjan different from old Gunjan? So Saloni, sacrifices absolutely कुछ भी बड़ा पाने के लिए sacrifices करने पड़ते हैं. So I would say initially yes, those were sacrifices. बस difference ये आता है कि एक point पे आके आपको वो sacrifices लगते नहीं हैं, आपको वो feel नहीं होते. And that starts happening when you actually see the results. आपको लगता है कि नहीं, okay, this is actually a good deal. मतलब जो मुझे इसका return मिल रहा है, जो मुझे इसका फल मिल रहा है ना, that's way more important. जो भी हम discuss कर रहे थे कि exercise करने के बाद when you feel it ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, वो जो मैंने 1 घंटा निकाला या जो मैं उठी सुबह, मैंने मेहनत करी, आई शोड अप, इट वॉज गुड. एंड दैट्स व्हेन जब आप अगले दिन आपको किक मिलती है खुद से उठने के लिए. तो येस, शुरू में सैक्रिफाइसेस होते हैं. मी बीइंग अ फूडी, कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, लव टू ईट, और घर में यही बातें होती हैं, मतलब अगर हम ब्रेकफास्ट पे हैं तो लंच पे क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा. सो कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ सेटअप to now pre-planning meals and having everything in place कि अच्छा इतना प्रोटीन है, क्या मेरे खाने में प्रोटीन है. So पहले शुरू में वो हाँ sacrifices थे, but अब I've reached a point wherein I know how to create a balance between all these things, between what I want to eat and what I need to eat. So I think very beautifully put up. I think सबसे ज़्यादा inertia
is the first time when you sacrifice, right? Like पहली बार जिम पहुंचना, पहली बार स्वीट को ना बोलना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी डेजर्ट, सोने चली जाती हूँ rather, right? So second day it's a little less than that. Third day it's lesser. Fourth day it gets better. Fifth, so I completely, I think very well put ke sacrifices in the beginning and then you become that person where you are enjoying it. So Saloni, यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ. So while I was on my this transformation journey, और तब मैंने like it was like a swear चल रहा था कि मुझे नहीं खाना है 3 महीने, मुझे no fried, nothing, no sugar, and I love chocolate cake. I'm a person who loves chocolate cake. तो एक बार ऐसा हुआ, so I was working at that time. मेरे ऑफिस में किसी का बर्थडे था एंड देन दे ऑर्डर्ड अ चॉकलेट केक. और मेरे पिछले 3 महीने की मेरी जर्नी चल रही थी. 2 महीने से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया था और मुझे रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो गए थे. मतलब आई लॉस्ट गुड वेट ऑल्सो. तो वो चॉकलेट केक आया और एंड देन आई गॉट टेम्प्टेड कि यार चॉकलेट केक है, 2 महीने हो गए, अच्छा खासा वेट लूज़ कर लिया, इतना सा खा लूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा. बट साथ में खुद के साथ ये पैक्ट था कि 3 महीने तक नहीं टच करना कुछ भी ऐसा. सो दिस वॉज देयर वॉज अ फाइट कि गुंजन इतना सा खा ले यार, क्या हो जाएगा. एंड नहीं 3 महीने का प्रॉमिस है, नहीं तोड़ना. तो बहुत देर वो स्ट्रगल चला एंड फाइनली मतलब सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बट मेरी आइज सिर्फ उस चॉकलेट केक पे थी. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था किसका बर्थडे क्या है. मैं वो चॉकलेट केक खाऊं या नहीं खाऊं. कितना रिलेट कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती गुंजन. सो मतलब लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बट याद अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स याद करूँ तो वो मेरी बहुत बड़ा मेरा टेस्ट था. सो व्हाट आई डिड, लाइक सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसेस, आई गॉट एन आइडिया एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. मैंने इमीडिएटली अपना फ़ोन निकाला, नोट्स सेक्शन खोला जहाँ पे मैं खुद से बातें करती हूँ. सो वहाँ पे आई जस्ट सेट दिस टू माई सेल्फ कि गुंजन, after 3 months, like after you complete these 3 months, first thing you're gonna have is chocolate cake, so shut up right now. एंड जैसे ही मैंने खुद को ये मैसेज किया लाइक नोट में, उसके बाद मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं हुई. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है, ये चॉकलेट केक ही तो है, ये कहीं जा थोड़ी ना रहा है. 1 महीने के बाद भी सेम बेकरी से सेम केक ऑर्डर हो जाएगा ना, बट ये टाइम वापस नहीं आएगा. मैं तो खुद को समझाती हूँ कि पूरी लाइफ में कितना चॉकलेट केक खाया है अगर मैं उसको टोटल करूँ तो यार बहुत हो गया. मैं तो और छोटे गोल्स रखती हूँ, 3 महीना भी नहीं रखती मैं. 7 दिन 10 दिन, पीपल नो हियर आई हैव लाइक दिस 7 day sugar free challenge. तो आई ट्राई टू डू दैट विच वर्क्स प्रीटी वेल फॉर मी. 3 months इज आई थिंक मेरा इतना नहीं है अभी. स्टिल लर्निंग टू रीच योर वन डे आई विल बी एट योर लेवल. ये वो वाला टाइम था जब मैं आई वाज लाइक कंप्लीटली अ डिफरेंट गर्ल. अगर आप मेरी वो पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो शायद पहचानोगे भी नहीं. तो वो उस टाइम पे मुझे मे बी वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए वो टेस्ट. या आई थिंक और वो स्लिपरी स्लोप है, वो कभी इतना केक तो होता ही नहीं है. फिर योर ब्रेन टेल्स यू कि अब तो खा ही लिया ना, अब तो उपवास टूट चुका है. So then it's a slippery slope and you fail at it. So very good point. So Gunjan, ये fat to fit journey में frustration तो बहुत होती है, right? Like there are these points where you feel super low and there are these traps. आपने एक chocolate cake trap तो हमें समझा दिया. और ऐसे और कोई frustration पॉइंट्स थे? क्योंकि मैं जब शुगर फ्री चैलेंज करती हूँ ना तो आई गो थ्रू दिस, लाइक आई लिटरली प्लॉट अ ग्राफ ऑफ माई मेंटल सिचुएशन व्हेन आई लीव शुगर एंड इट्स अमेजिंग दैट एवरी टाइम आई डू अ शुगर फ्री 7 days आई फील दैट. सो पहला दिन अच्छा फील होता है, अरे मैं तो कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं सबको जाके बताती हूँ अरे पता है मैं तो शुगर फ्री चैलेंज कर. सो फर्स्ट डे इज एलेशन, देन आई एंटर डे 2 वेर आई फील द मैक्सिमम क्रेविंग. Right, day 2 is for me, this is my personal thing where मेरे सारा ब्रेन मेरे साथ गेम्स करता है. ठीक है ना, थोड़ा खा लेना, अगली वीक मंडे से शुरू कर लेना, ये वाला वीक जाने देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. देन कम्स द थर्ड डे जहाँ मुझे गुस्सा आता है. राइट, आई एम एंग्री एट पीपल, एंग्री एट आई डोंट नो वर्क, एंग्री एट एवरीथिंग. के मतलब एक तो मुझे मीठा भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से मुझे ये भी करना पड़ रहा है. सो दैट्स माई एंगर जोन. देन फोर्थ डे आई एंटर अ विजडम और थोड़ी सेन बन जाती हूँ. ऐसे लगता है अरे 4th पे तो पहुंच गई हूँ, मतलब the tough part is done. It's over, and right. you start feeling good, the energy comes back, the low energy turns into high energy. So मेरा एक वो है, right? And मैंने ये experience किया है. What is your experience of those frustrating moments and those traps that one falls in that fit to
Is it hormone changes? Is it those anger moments? Would love to know that. Yeah, you've said it very rightly because it's all chemicals. अगर हम एक बार इस चीज़ को समझ जाए ना कि ये जो स्पेशली द फूड दैट वी ईट इट गोज इनसाइड एंड इट रिलीजेस सम केमिकल्स, और अगर वो रिलीज नहीं होंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा. ये सब कहने की बातें होती हैं और ये वहीं की वहीं रह जाती हैं कि अच्छा ठीक है, फाइंड अ हॉबी. मतलब यार कैसे तुम खाने को छोड़ के ड्राइंग करके तो नहीं खुश रह सकते. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई थिंक ये सिर्फ इट्स ईजियर सेड देन डन. तो आई टेल यू कि मैंने क्या किया था. ऑफ कोर्स मतलब मेरा विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मे बी मुझे आई डोंट नो मैंने कैसे कर लिया उस टाइम पे. इफ आई स्टिल लुक बैक, I still don't know. But yeah, one thing which I would definitely like But to आप इतनी motivated थे फिर भी वो वीक मोमेंट्स आते होंगे, राइट? एब्सोल्युटली बिल्कुल आते थे. तो मैं बताती हूँ कि मुझे किस चीज़ ने हेल्प किया. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हैविंग समवन बाय योर साइड. सो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प मिलती है कि कभी अगर आप लो जा रहे हो ना तो वो आपको सपोर्ट, आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा. कभी वो लो जा रहा है तो आप, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी की तो एनर्जी एंथुजियाज्म हाई होगा, आपका डाउन जाएगा, देन देयर शुड बी समवन टू नो लेट्स डू इट, हमने कमिट किया है. तो फॉर मी दैट वाज माय हस्बैंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि ही वाज देयर विद मी. दो he never needed to go on a diet but he still did just for me कि हाँ हम साथ में करेंगे. If you're listening to this podcast, yes I love you. Yeah, so तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम जो 3 month वाला पीरियड था अगेन, तब उसी टाइम पे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आई और हम अपनी हर एनिवर्सरी पे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं. एंड दिस टाइम लाइक जब फिर वो एनिवर्सरी मुझे लगा यार हमने तो जाना है, हम नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी झंड, दिस एंड दैट. एग्जैक्टली. सो ये एक अलग ट्रैप है. आई एम गोइंग टू लिटरली कॉल आउट दिस ट्रैप. लिव ओनली वंस. एग्जैक्टली. हाँ, जिंदगी तो एक ही है. खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे जीने का मतलब क्या है? गाइस, दिस इज अ ट्रैप. एग्जैक्टली. तो मुझे लगा कि नहीं यार हम कर क्या रहे हैं, ये हम अपनी एनिवर्सरी साल में एक बार आती है. तो बट देन व्हाट वी डिड, हमने सोचा कि ओके कुछ ना कुछ तो करेंगे बट इसी चीज़ को हम इंटरेस्टिंग बना लेते हैं. लाइक वी आर ऑन अ डाइट बट इसी को हम कैसे ट्विस्ट करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो हमने एक स्टेकेशन प्लान किया, जो कि जैसे मैं अगर दिल्ली में रहती हूँ तो हमने बहुत ही पास में आगरा में, विच इज़ लाइक 3 to 4 hours की जर्नी, वहाँ पर हमने स्टेकेशन प्लान किया. और हमने अपना सारा एनिवर्सरी के दिन हम सुबह गए और जाने से पहले हमने अपने सारे मील्स प्रिपेयर करे पूरे दिन के, उनको पैक करके हम साथ में लेके गए. Oh my God, this is #relationship goals, #health goals, #everything. तो हमने कार में वो सब लेके गए और वहाँ जाके हमने उनके वो जो मिनी फ्रिज होता है वहाँ पे रखा. हमने स्टे एंजॉय करा, स्विमिंग पूल एंजॉय किया, हमने वहाँ पर होटल में जिम, स्पा, वो सब चीज़ें एंजॉय की. और खाने के टाइम पे हमने अपना फ्रिज में से खाना निकाला एंड बिलीव मी हम अपना इंडक्शन भी साथ में लेके गए थे. और हमने पहली बार स्मोकिंग वाला रूम लिया क्योंकि हमने इंडक्शन यूज़ करना है. तो हमने अपने उसमें खाना गर्म किया, वी एट दैट फूड. सो वी डिड एवरीथिंग. हमने सोचा सिर्फ एक खाने वाले पोर्शन को साइड में रख के हम बाकी सब चीज़ें तो एंजॉय कर सकते हैं ना. तो लुक एट द ब्राइट साइड. लाइक हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पा रही, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन डू. मतलब लाइफ सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है. हाँ, एंड आई थिंक जब करना होता है तो इंसान कैसे भी कर लेता है, और जब फेल होना होता है तो सुबह उठ के दिमाग 10 एक्सक्यूजेस थ्रो कर देता है कि आज तो वीक फील हो रहा है. हाँ. आज और तो उसके बाद से अब तक अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कि कैसे मतलब एनिवर्सरीज के बारे में, आई थिंक दैट्स वन एनिवर्सरी विच आई स्टिल रिमेंबर. बाकी मुझे याद करना पड़ेगा हमने क्या किया था, बट वो इतनी मेमोरेबल हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डू समथिंग टुगेदर, वी वर ट्राइंग टू अचीव समथिंग टुगेदर. तो वो बहुत मेमोरेबल हो गया. I can imagine. How sweet. This is amazing. I'm so glad you shared this with us. So, now to whoever is trying to be healthy or even weight loss, right? 2 चीज़ें होती है. एक होती है एक्सरसाइज करना, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज हो, राइट, फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरी होती है खाना, राइट. आपका क्या ओपिनियन है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ 2? आप किस पे ज़्यादा डिपेंड करते हो? क्या कोई एक कर सकता है और दूसरा नहीं? अगेन गोइंग बैक टू बुक्स, बहुत जगह पे आप पढ़ोगे इट्स इतना % डाइट, इतना % एक्सरसाइज, 70% ये, 30% ये. आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल. मेरे हिसाब से कोई परसेंटेज नहीं है. ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. एक्सरसाइज इज़ फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी,
मोबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए है. वेयर एज डाइट इज़ योर फ्यूल, इट्स योर न्यूट्रिशन, it's for hair, it's for your skin, it's for your how you feel. So ये अंदर की चीज़ है और वो आपकी बॉडी को टोन करने के लिए है एक्सरसाइज. तो वो कोई 70% 30% वाली चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है. ये मेरा ओपिनियन है और मुझे लगता है दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. हमें टाइम निकालना चाहिए दोनों चीज़ों के लिए ही. अपनी डाइट पे भी फोकस करना चाहिए और एक्सरसाइज को मैं फिजिकल फिटनेस ज़्यादा बोलूँगी, लाइक फिजिकल एक्टिव रहना ज़्यादा बोलूँगी. सो वो अब आप एक्सरसाइज करो या आप कोई स्पोर्ट खेल लो, आप स्विमिंग कर लो, आप अपने घर के काम कर लो, ठीक है ना. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाउस वाइफ हु इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स. उनके पास नहीं होगा टाइम एक्सरसाइज करने के लिए. आई मीन लेट्स बी रियल, उन इतनी थक जाएंगी कि वो जिम जाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकती. बट अगर आप अपने सारा घर का काम कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, उनको मतलब 10 बार उनके कपड़े चेंज कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट. सो प्लीज़ लेट्स नॉट टेक अनदर बर्डन ऑफ कि अब मुझे एक्सरसाइज भी करनी है. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू आर बीइंग फिजिकली एक्टिव ऑलरेडी. मे बी यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ, राइट. सो ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं मेरे लिए. और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेस लाइन है वो है माइंडसेट. सो 100% माइंडसेट इज़ नीडेड. उसके बाद आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर ही लो. वेरी नाइस. सो मैंने जब शुरू किया ना तो मैंने एक जिम इंस्ट्रक्टर कोच लिया हु हेल्प मी. एंड उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे समझाया कि जब मैं जिम पहुंची मैंने बोला सर हाथ पतले कर दीजिए, ये कर दीजिए, दैट पर्सन जो मतलब मैं शुरू कर रही थी अपनी जर्नी तब. तो उसने कहा जिम में वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस तो जिम के बाहर होगा. तो मैंने बोला ओके ठीक है व्हाटएवर. फिर थोड़े दिन के बाद मैं समझ गई वो क्या बोल रहे हैं. मैं और वेरी रिसेंटली मैंने उनको बोला सर मसल बनानी है और मतलब मैं अभी अपना मैं फैट वेट और मसल वेट मेजर करती हूँ, राइट. सो आई डोंट केयर व्हाट माय वेट इज, ऑल आई केयर अबाउट दैट आई वांट टू बी मोर मस्कुलर. तो मैंने बोला सर मसल बनानी है जिम में. सर बोलते मसल तो मैं जिम में ब्रेक करूंगा, बनेगी तो बाहर. और वो मसल ब्रेक करके आप घर जाओगे और वो पूरे दिन में आपकी मसल रिपेयर में टोनिंग होगी और रिपेयर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू ईट. Exactly. Right. And I was like okay, that's too much of science for me. No, but now I'm ready enough to understand what he's saying. And that brings me to this diet piece, right? Like the importance of I completely agree कि ये दोनों अलग नहीं चल सकती. Now coming down to diet, आपकी सबसे favorite food principle क्या है? Or rather, what is the biggest what the health when it comes to trending diets? नहीं, सो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न या एज यू सेड कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, मुझे लगता है कि वी बीइंग इंडियंस ना, वी एम्फसाइज अ लॉट ऑन कार्ब्स. मतलब अर्लियर ऐसा होता था, हमारे लिए हेल्दी खाना पोहा उपमा होता है कि ठीक है पोहा खा रहे उपमा, बट वी डोंट रियलाइज कि आर प्लेट इज़ मोस्टली कार्ब्स. हम लोगों की प्लेट में अगर एक नॉर्मल किसी के आप खाने की प्लेट देखोगे ना तो चपातीज या राइस या कार्ब का पोर्शन ज़्यादा होता है, वेयर एज वेजीज थोड़ी सी सब्जी होगी. Exactly. और वो भी उसको पका के मार चुके खराब कर देते हैं. राइट. सो वी डोंट रियलाइज कि सिर्फ रेशो को बदलना है. हमारा खाना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हम रेशो प्रोपोर्शन कर रहे हैं ना, उसमें सब्जी का पोर्शन, उसमें रॉ वेजीज का पोर्शन वो ज़्यादा होना चाहिए. और मतलब it should be a balanced meal. Got it. Is what I want to so say. Let's say principle number 1, go less on your carbs and more on other elements on your plate also, without changing anything in your plate, right? I think that's a good first principle. Let's go to second principle. Next would be, let's not fall into the traps of healthy labeled things. So for example, brown rice, brown bread, but is it really good for you, for your body? Is that what you really need to eat? So वो जो ट्रैप होते हैं ना कि हाँ यार ये तो एनर्जी बार्स, बट अगर पीछे घुमा के तो देखो क्या है उस एनर्जी बार में. आई थिंक सिंपलर वुड बी कि कुछ भी पैक्ड है, राइट. मतलब वो नहीं हो सकता 100% हेल्दी, राइट. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक इंडिया में तो हम इतने ब्लेस्ड है विद पेरेंट्स लिविंग क्लोज टू अस, और मतलब हम लिटरली हमारे किचन में बहुत कुछ स्क्रैच से बना सकते हैं, वेयर वी नीड नॉट बी लिविंग दैट लाइफ कि हम पैकेट खोल के कुछ खा रहे हैं.
okay, I love this principle, stay away from packaged food Right. and not fall in trap of healthy food. Labeled food. Yeah, so called healthy food. So called healthy food. Third principle that मैं अपना थोप रही हूँ. I feel the importance of protein is less understood. Exactly. And I did not know about it till the time I started weight training. So if you could talk about that as the third on. Right. So actually, the first point wherein I said it should be a balanced meal, वहाँ पर actually मेरा कहने का मतलब यही था कि less on carbs, and when you'll go less on carbs, you'll automatically, balance it with other macronutrients like protein, like healthy fats, like fiber. So वो सारी चीज़ों की importance, and yes, उसमें प्रोटीनिफाई से वो बहुत कम है हमारी इंडियन डाइट्स, लाइक नॉट इंडियन डाइट्स में बट हमारी प्रेफरेंसेस में. And I think as girls, Gunjan, right? Exactly. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़के वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, वो उनकी अलग ही एक प्रॉब्लम है कि सारे लड़के जिम में घुसते हैं, बट it's okay if they don't do weight training. But as a girl, you need muscles to like, so you have to like someday probably have a baby, hold that baby who is like 14 kgs and walk around. मतलब मसल नहीं होगी तो कैसे you will, perimenopause stage, right? Women who are there's so much research कि women who are muscular versus non-muscular, the perimenopausal stage goes way smoother if you are muscular than non-muscular. So I think females के लिए तो वेट ट्रेनिंग और प्रोटीन. एंड आई एम सो ग्लैड कि ये मिथ्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं. मतलब आई एम ट्राइंग टू डू माई बिट, एंड आई एम so thankful to all the fitness and health influencers who are trying to spread this word कि strength training बहुत important है women के लिए, and now people are realizing. अब मैं देख रही हूँ कि लोग जो हमारे programs भी join करते हैं वो भी हमसे मतलब workout वगैरह करते हैं, and they are doing like all these strength training, they are lifting weights, and I really feel very happy seeing them doing all this. ठीक है, good principles we discussed, but कौन सा trending diet है which according to you is like a big no-no? A big no-no? हाँ, let's say keto, intermittent, मैं बस बोलूँ जो मुझे नाम पता है मुझे, या फिर बहुत ही strict dieting. मैंने तो ऐसे सुने जिसमें पहला दिन सिर्फ फ्रूट खाओ, अगला दिन सिर्फ आलू खाओ, तीसरा दिन सिर्फ That's the worst. जूस पियो. मैंने किया था पहले GM डाइट. एब्सोल्युटली, मैंने बहुत किया था अपने कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत, और जब भी मैं करती हूँ मेरा गट खराब हो जाता है. वो बना ही इसलिए है. वो आपके मेटाबॉलिज्म की वाट लगा देता है इस तरह का कोई भी डाइट प्लान. सो आई थिंक वो तो बिल्कुल भी नहीं. और कोई भी एक्सट्रीम डाइट, आई थिंक that's not right. That cannot be right. एक्सट्रीम जाना किसी भी चीज़ में कभी भी सही नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. सो लुक फॉर बैलेंस, लुक फॉर सस्टेनेबिलिटी. और जैसा हमने डिस्कस किया, आपका डाइट प्लान बहुत सिमिलर होना चाहिए टू वॉट यू आर ऑलरेडी ईटिंग. इट्स मोर अबाउट द प्रोपोर्शंस, मोर अबाउट द चॉइस ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग. इट शुड नॉट बी समथिंग एकदम की कार्ब्स एकदम बंद कर दो या कीटो, या मैं पर्सनली तो नहीं बिलीव करती हूँ. 28% of people who come to Traya who have the complaint कि हमें बहुत excessive hair fall हो रहा है, मतलब बहुत झड़ रहे हैं, उनका एक hair fall का type होता है called telogen effluvium. Alright. And one major cause contributing to telogen effluvium is extreme dieting. Extreme dieting. Because जब आप extreme dieting करते हो तो आपकी body को एक shock लगता है, आपकी इतनी न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाती है. लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग की और आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पास कितनी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है. एंड वी सी दिस डे इन एंड आउट हियर एट Traya, राइट, कि हाउ एक्सट्रीम डाइटिंग कैन एक्चुअली इवन लीड टू समथिंग लाइक हेयर फॉल. एग्जैक्टली, हेयर फॉल, लूज स्किन, एनर्जी, मूड, इट अफेक्ट्स almost everything. It's just that you've lost weight, but you just don't lose weight. You lose a lot of other things. So Gunjan, another thing which was very surprising for me is कि this whole space of supplements, right? I know कि अभी बहुत सारी brands आ रही हैं और लोग लेना शुरू कर रहे हैं, but overall फिर भी इंडिया में कल्चर नहीं है कि लोग डेली लेवल पे vitamins खाएं. आपका क्या ओपिनियन है on this whole supplement piece? Should people be eating multivitamins? Should people stay away from it? I'm sure there is like one what the health around the supplement space. Okay, so I'll tell you what I believe.
मुझे सप्लीमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस वो सेफ़ हो, उनका सोर्स सही हो, अडल्ट्रेटेड ना हो, मुझे सप्लीमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली ज़रूरी हैं। आई टेल यू व्हाई। अभी ना हमारा जो भी क्रॉप है, फूड है, जो भी आता है वो इतना ज़्यादा अडल्ट्रेटेड हो चुका है, यू रियली डोंट नो कि उसमें क्या है। जो इतनी आजकल हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हो रही हैं, मतलब लुक एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वो कितने फिट हेल्दी होते थे, इतना काम कर लेते थे, वर्सेस हम लोग नहीं कर पाते हैं। Because the kind of diet they used to have versus what we are having, there is a huge difference. There is a huge difference. तो उनके नेचुरली वो बहुत हेल्दी खाते थे, सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाते थे, सारे वाइटामिन उनके फूड से उन्हें मिल जाते थे। हम उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं विद ऑल द बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज। वी कैन नॉट डू दैट। सो हमें कुछ तो हेल्प चाहिए उस न्यूट्रिएंट को मीट करने के लिए, एंड दैट हेल्प इज बेसिकली सप्लीमेंट्स। यू आर सप्लीमेंटिंग all those vitamins and proteins and what all. Given the fact कि वो सोर्स सही है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सप्लीमेंट जिसमें कुछ भी मिला हुआ है। अगर वो अच्छा, मतलब मल्टी वाइटामिन हैं या आंवला या गिलोय एंड ऑल दीज के, अगर आपके लिए एक ईजी वे है टू कंज्यूम देम, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम आती कहाँ है? जब हम इन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छा हम सप्लीमेंट खा रहे हैं, या फिर मी एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर कुछ मैं पोस्ट करती हूँ, देन ऑफ कोर्स मैं भी देखती हूँ कि लोग एकदम शुरू हो जाते हैं सप्लीमेंट्स। मुझे ये समझ नहीं आता कि हेल्थ सप्लीमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। बट यही अगर मैं अगले दिन एक पोस्ट डाल दूँ जिसमें मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ पर ये बात नहीं है कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी नहीं है। हम इन चीज़ों में फॉल्ट्स ज़्यादा निकालते हैं कि ओह प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों ले लिया या कैसे ले लिया। बट अगर मैं समोसा कचौड़ी की पिक्चर डालूंगी तो नोबडी वुड माइंड। नहीं, आई थिंक आई एम विद यू गुंजन। मैं भी पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आज की डेट पे अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो सप्लीमेंट, तो आप में पक्का कुछ डेफिशिएंसी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार गुंजन। मैं जब बेबी प्लान कर रही थी तो मैं थोड़ी एनीमिया था मुझे, मेरा हीमोग्लोबिन तब कम था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला पालक सूप पियो, खूब सारा नींबू और 1 ग्लास ऑरेंज जूस भी पियो तो अब्जॉर्ब भी होगा। मैंने प्रॉपरली विद डिसिप्लिन, और मैं डिसिप्लिन पर्सन तब बिल्कुल नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने कंसिस्टेंसी में की होगी, बट मैं बहुत मोटिवेटेड थी। मैंने 6 महीने पालक सूप पिया और मेरे ब्लड टेस्ट में वो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा भी नहीं बदला। एंड ये पालक में गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है। ऑफ कोर्स देन मैंने बहुत चीज़ें समझी। मैंने समझा कि मेरी गट में भी इश्यूज थे, वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। बट आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि सप्लीमेंट दवाई नहीं है, सप्लीमेंट्स प्रिवेंशन है, सप्लीमेंट केयर है, नरिशमेंट है। या इट्स लाइक you can prevent a lot of diseases अगर आप पहले से अपने आप को सप्लीमेंटेड रखोगे, सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लोगे। अदरवाइज क्या होगा, बाद में उन्हें एज अ क्योर लेना पड़ेगा और मे भी बहुत हैवी डोजेस में लेना पड़ेगा, ना चाहते हुए लेना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि हम अभी उसको बहुत समझदारी से कि हाँ हम कभी कभी B12 का ले लें, कभी D के लिए कुछ ले लें, कभी कैल्शियम का कुछ ले लें। सो हम खुद से उसको बैलेंस करते हुए चलें। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी जो लोग नहीं करते हैं कि अपना ईयरली चेकअप ज़रूर करवाएं। चेक योर रिपोर्ट्स, विजिट अ डॉक्टर। देखो, आपको खुद ही रिपोर्ट्स पढ़ के बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेरा कहाँ पे रेड जोन है, उसको मैं सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर लूँ एंड आई विल बी गुड। या आई थिंक मैं तो मेरे 3-year-old को भी सप्लीमेंट देती हूँ। सो माई किड, इनफैक्ट हमने एक सर्वे किया था, इट्स वेरी अनकॉमन इन इंडिया टू गिव अ सप्लीमेंट टू अ किड, बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च दैट सेज कि अगर कोई बच्चे में 4 साल की कम एज में डेफिशिएंसी होती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब वो पर्सन बड़ा होगा और 50 का टर्न होगा तो उसे मोर देन 1 क्रॉनिक डिजीज आएगी। So there is a link between early childhood deficiency with a chronic health issue that can lead to a heart attack or whatever, right? So that's how important being nourished is, and not being deficient is. So Gunjan, एक I think बहुत बड़ी problem है ignorance, right? लोग समझते कि मैं खाते पीते घर का हूँ ना, मैं तो हेल्दी ही हूँ, क्योंकि हमने समझा कि सबकी अपनी डेफिनेशन ऑफ हेल्दी है। और एक दिन बूम, हार्ट अटैक, एंड देन डॉक्टर इज लाइक
ऑब्वियस था आप इतने अनहेल्दी हो, राइट? तो वो क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो सॉर्ट ऑफ वन शुड बी अवेयर ऑफ कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है तो भाई इट्स हाई टाइम? सलोनी, आई वुड से इट्स सूनर द बेटर. आप ये मान के चलो कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फाइट्स चल रही हैं, बिकॉज अभी आज की डेट में नोबडी इज़ परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड फिटनेस. क्योंकि जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं और जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस दैट वी कैरी ईच एंड एवरी मोमेंट. तो ऑलरेडी बहुत बैटल्स हम फाइट कर रहे हैं अंदर से. सो इसलिए सूनर द बेटर. आई एम श्योर जितने भी लोग हमारे इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. किसी को नींद नहीं आती, किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है. सो कुछ ना कुछ तो है ही. सो इट्स ऑलरेडी अलार्मिंग. इसलिए हम आज से ही करेक्टिव एक्शंस लेना शुरू कर दें, लाइक राइट नाउ फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट. तो वही हमारे लिए बेटर है. लेट्स नॉट वेट कि अचानक से कभी कुछ हुआ और फिर हम सोच रहे हैं उसके बारे में, बिकॉज देन इट विल बी टू लेट. आई एग्री एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले. सो नहीं पा रहे हैं, राइट? सो स्लीप इशूज, स्ट्रेस इशूज. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस हो और बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉबेबली यू आर नॉट रेडी इनफ टू हैंडल दैट स्ट्रेस. मैंने देखा है पर्सनली कि जब मैं अनफिट होती थी एंड माई एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क, माई प्रोडक्टिविटी एट वर्क, माई एनर्जी लेवल्स एट वर्क versus now that I'm fit, comparatively, I have personally observed that difference कि आप जब हेल्दी बनने लग जाते हो तो कैसे सेम issues life के you feel like now you're ready to battle those and win. You feel stronger, very true, physically and mentally. और आपके relationships भी बहुत improve होते हैं. You're able to deal with deal with other people better because you understand emotions. हम कहते हैं ना relationship में patience बहुत ज़रूरी होता है. हम वो patient रह पाना, stresses को handle करना, दूसरे को समझना, ये सब छोटी छोटी emotional aspects भी न्यूट्रिशन से, हमारे फिजिकल फिटनेस से, मेंटल फिटनेस से आते हैं. आई थिंक मुझे तो जब सुबह बोला जाता है ना 25 सूर्य नमस्कार या फिर व्हाटएवर 40 मोर स्क्वाट्स, और मैं वो कर लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अरे मैं तो कुछ भी अचीव कर सकती हूँ. राइट, हाँ. तो जब मैं वो करके ऑफिस पहुँचती हूँ तो आई फील लाइक द सेंस ऑफ अचीवमेंट इज ऑलरेडी देयर. मैं दे दो प्रॉब्लम कर लूंगी, राइट? सो आई थिंक it changes you as a personality, as a person, all around. That's very right. So now let's bring I really want to talk about this whole gym toxicity, right? Like जब शुरू करते हैं, right? I remember the first time जब मैंने जिम जाना शुरू किया था, मुझे मशीन चालू करनी नहीं आती थी. So आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या जिम जाना ज़रूरी है, क्या वेट ट्रेनिंग, मतलब what would be your advice to a beginner? Gym is like a machine, like a food processor. तो खाना तो वैसे भी बन सकता है और फूड प्रोसेसर में भी बन सकता है. इट्स लाइक अ डिश वॉशर. बर्तन वैसे भी साफ हो सकते हैं और डिश वॉशर में भी साफ हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट यू गेट ऑल दोज टेक्नोलॉजी इन प्लेस एंड देन वन स्विच ऑप्शन एंड दिस यू गेट लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि हाँ ये मेथड ऑन कर लो, वो कर लो. बट अदरवाइज भी सब चीज़ें पॉसिबल हैं और ट्रेडिशनली सब वैसे ही चलती आ रही हैं. सो एज अ बिगनर इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने जिम जाना है या आपके रूटीन पे डिपेंड करता है. कुछ लोगों को जिम जाके बूस्ट मिलता है और लोगों को देख के, वो जिम के गाने सुन के, वो वाइब में उनको लगता है कि मैं यहाँ पे ही फिटनेस को फॉलो कर सकता हूँ, तो गो टू जिम. वहाँ पे जाके भी आप एज अ बिगनर छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हो. 15 किलो का डंबल होता है तो 2.5 किलो का भी डंबल होता है. लाइक स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इम्प्रूव करो. या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो आप घर में एक सिंपल योगा मैट से भी स्टार्ट कर सकते हो. यू हैव मतलब अगर आपके पास वेट्स नहीं भी हैं तो आप अपनी बॉडी को एज अ वेट यूज़ करो. वेट ट्रेनिंग आप उससे भी कर सकते हो. स्क्वाट्स करो, ये सब एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं. सो यू राइटली सेड, फॉलो करो गुंजन को. एब्सोल्युटली, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू राइट नाउ. राइट, सो आई थिंक वेरी वेल पुट अप. सो गुंजन, ये चीट डे और रेस्ट डे का फंडा क्या है? मतलब आई एम जस्ट बेसिकली यूजिंग दिस टाइम टू लर्न एज मच एज आई कैन फ्रॉम यू, राइट? सो मैंने बहुत सुना है और ये भी एक ट्रैप है, बट मैंने सुना है कि अरे आज मेरा चीट डे है, मैं कल से. आर चीट डेज इम्पॉर्टेंट? चीट डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट.
अब हम उसे चीट डेज बोले या फिर ट्रीट डेज बोले, लाइक आई पर्सनली लाइक टू कॉल इट ट्रीट डेज एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू देम बिकॉज यू नो इट्स लाइक आप पूरा वीक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, एक रूटीन, एक रेजिमेंट फॉलो कर रहे हो, उसके बाद यू नीड अ ब्रेक एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू यू नो अगेन गेट बैक. इट्स लाइक अ संडे. जैसे हम पूरा हफ्ता काम करते हैं और संडे हम एक ब्रेक लेते हैं एंड देन संडे के बाद वी अगेन स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ यार मुझे यू नो आई अगेन वांट, इफ़ यू लव योर वर्क यू अगेन वांट टू गो बैक एंड स्टार्ट डूइंग इट. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ये होती है कि मुझे लगता है हमें अपनी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रखना चाहिए. हम इतना अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना अपने साथ तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी बीमार होना स्टार्ट कर देगी, इंटॉलरेंट हो जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू टेक एनीथिंग. मतलब कि फिर हमारी बॉडी सिर्फ क्लीन की ही आदत पड़ जाएगी. और बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि अपनी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल रखूँ और उसके लिए ट्रीट डेज हेल्प करते हैं, मेंटल साइकोलॉजी के लिए हेल्प करते हैं. और पर वो ट्रीट डे को डे और डेज ना हो जाए. हाँ एग्जैक्टली वो डे ही रहे, वो एक स्पेसिफिक मील ही रहे एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट. मैं तो पूरा वीक प्लान करती हूँ कि हाँ इस संडे आई विल बिंज ऑन दिस, लाइक आई विल ईट दिस, आई विल the chocolate cake. chocolate cake or whatever it be. But yeah, that excites me. And what about rest day, right? Is there any formula that you like to follow कि अगर कोई मंडे वर्कआउट कर रहा है तो ट्यूसडे ब्रेक ले, वेडनेसडे वर्कआउट करे, या फिर मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट करो, सैटरडे, मतलब व्हाट इज द राइट रेशियो ऑफ ब्रेक वर्सेस वर्कआउट डेज? सो रेस्ट डे डिपेंड करता है हमारे गोल पे, मतलब किस तरह का वर्कआउट हम कर रहे हैं. जो लोग बहुत हाई यू नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको रेस्ट डेज ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज ऑफ द यू नो वो मसल रीडेवलपमेंट के लिए, मसल टेयर्स होते हैं तो उसके रीडेवलपमेंट के लिए रेस्ट डेज बहुत ज़रूरी हैं. हाउएवर किसी का रेजिमेंट योगा एंड रिलैक्सेशन उन पे ज़्यादा है तो मे बी दे डोंट नीड लाइक एक हफ्ते में एक दिन रेस्ट ले लिया जस्ट टू गिव योर बॉडी अ ब्रेक, दैट्स ऑल. सो दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका किस तरह का रूटीन है एक्सरसाइज का. एक और क्वेश्चन स्पेशली फॉर द बिगनर्स, राइट? जब आप जिम जाना शुरू करते हो, राइट, पहला दिन सबसे टफ होता है, दूसरा दिन और भी टफ होता है क्योंकि बॉडी दुखती है, सोर हो जाती है, और फिर लगता है ओ माय गॉड मैं हिल नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही, मैं खांस रही हूँ तो इधर दुख रहा है, मैं सीढ़ी चल रही हूँ तो इधर दुख रहा है. व्हाट इज द बेस्ट सल्यूशन टू दैट? टू डू इट द राइट वे. वो उसके बाद भी होगा, ऐसा नहीं बिकॉज हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी हमारी बॉडी को आदत नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा स्टार्टिंग में हमारी बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लगाएगी, बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड, राइट? सो पहली बात, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि क्या हमें सोरनेस हो रही है या फिर हमारा तरीका ही गलत था. अगर हमारा तरीका ही गलत था, हमने गलत तरीके से एक्सरसाइज की, तो फिर वो इंजरी है. So it's very important to differentiate between an injury, like not doing it the right way, and a sore muscle. Yeah, exactly. Is it a pull or just a soreness? तो soreness है तो वो ठीक है, और अगर टेक्निक गलत थी तो फिर हमें टेक्निक को ठीक करना है. सोरनेस के लिए बहुत सारे हैक्स होते हैं या टिप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट पे अटेंशन टू प्री एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, विच अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर, कि टाइम नहीं है चलो सीधा एक्सरसाइज करी एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच नहीं किया. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर आप एक बिगिनर हो तो शुरू में आप स्ट्रेचिंग पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो. अपार्ट फ्रॉम दैट मसाज लाइक खुद से कर सकते हो, या फिर बहुत सारे आजकल वो रोलर्स आते हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे यू नो यू कैन मसाज योर मसल्स. टेक लाइक शावर, थोड़ा सा वार्म वाटर में आप वार्म शावर लो. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प, ऑयल मसाजेस एंड ऑल ऑफ दिस. And personally, what I realized, the worst thing that you can do to a sore body is not workout. Not exactly. अगर अगले दिन उठ के आप वर्कआउट चले जाओगे तो वो सारी सोरनेस चली जाए. मतलब ब्रेक लेना, सोरनेस. वर्स्ट थिंग इज कि मैं 2 दिन जाऊं, सोर बॉडी हो गई इसलिए छोड़ दूं, फिर वापस शुरू करूं, वापस सोर हो गई छोड़ दूं. दैट्स द वर्स्ट पैटर्न वन कैन फॉलो, एंड मैं पहले ऐसा ही करती. आप अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो फिर वापस आप जीरो से स्टार्ट आ रहे हो ना. अभी आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट किया है. इट्स जस्ट स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू दिस न्यू यू नो रूटीन ऑफ गेटिंग फिट एंड ऑल. बट अब वहाँ पे ब्रेक लगा दोगे तो फिर वापस you know, back to ground zero. So Gunjan, now we're moving to this segment, what the hell segment. Basically हम यहाँ पे आपको मुझे बताना है क्या सही है और क्या myth है, मतलब क्या fact है और क्या myth है. So I'm going to just read out some sentences from this paper and you have to tell me कि ये myth है या ये सच्चाई है. All right. Okay.
Empty stomach cardio will help me lose myth more myth weight. myth I like how you jumped onto it. So empty empty stomach. stomach cardio पे ही मैं समझ गई थी ये की it's गड़बड़ है. going wrong. Okay, guys, no need to go empty stomach to your gym. Whey protein contains steroids. इससे दूर रहो. No, it's a myth. Not all whey protein contains steroids. Some may contain, but yeah. Choose the right whey protein. Let's put Yeah, it exactly. this way. Right? Exercise prevents aging. To an extent, we can say for sure. Eating creatine will lead to hair loss. I think you can answer this better. I'll answer it. I need to work out all 7 days to see results faster. No, it's a myth. You need to take break to see results better and faster. हाँ, मतलब जो मुझे मेरे जिम सर ने सिखाया कि रिपेयर बाहर होगा. Repair. विराज कोटिंग यू हियर. आई शुड नॉट वर्क आउट ड्यूरिंग माई पीरियड्स. ओके ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है आई वुड से. सो इसका कुछ ये मिथ या वो नहीं है. किसी को सूट करता है, some कैन नॉट. सो लिसन टू योर बॉडी. Only females practice Zumba. It's absolutely a myth. Maybe you should do an episode on your channel on men doing Zumba. Yeah, of course. Cut all whites like dairy, sugar, rice, bread from my diet will help me living a healthier lifestyle. Never cut anything from your diet. ऐसा फिटनेस कोच हो तो क्या है. If I stop working out, I will gain my weight again. हाँ, ये मैंने भी सुना है यार. जिम तो तुझ नहीं जाके वेट लॉस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिम गए तो दिखेगा रिजल्ट, लेकिन आप जिम छोड़ोगे ना तो एकदम से और ज़्यादा पहले. ये आई थिंक हमारी मिनॉक्सिडाइल हेयर लॉस वाली मिथ है यहाँ पे कि भाई सीरम छोड़ देंगे तो पहले से ज़्यादा हेयर लॉस आ जाएगा. राइट. सो बताइए. So if you stop going to gym, you may not start gaining back the weight, but if you stop staying physically active, then you will. Fair enough. Thank you so much, Gunjan, for coming here and helping us break all these myths and say what the health to each one of them. Thank you so much and really enjoyed this segment. Okay, now I'm moving on to our next segment. So, Gunjan, we went to our community, our Instagram, our YouTube, and we asked people that if they have any specific questions that they would want to ask someone like you. Okay. And I have some questions that I'm going to read out that were very interesting. I have lost a significant amount of weight and now I have a lot of loose skin over my stomach, arms. How do I deal with it? So you need toning right now, for which exercise can really help. So your exercise routine should be more focused on toning. Strength training will definitely help instead of cardio. So less of cardio and more of strength. Muscle building. Muscle building, yes. So I think ये ऐसा भी होता है गुंजन कि जब आप बहुत डाइटिंग करके वेट लॉस कर देते, सोते डाइटिंग करते विदाउट एक्चुअली एक्सरसाइजिंग, Actually, डूइंग it's वन ऑफ द टू. हाँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लूज करने से ऐसा होता है. I'm 21-year-old woman and I weigh only 39 kg. Are there any food or dietary plans that will help me with weight gain? With weight gain, I think we need to know the BMI to actually know more about her and a lot of other things that, why is her weight so low, if there's any, genetic or what exactly is there all about. But yes, right diet can absolutely help if there's any kind of deficiency or if the weight is not up to the mark. During pregnancy, I gained a lot of weight. What is the right time to get back to my workout routine and be in shape? So workout though we can start like immediately as soon as, जब आपको after your delivery, if you think कि हाँ 1 month later you can start doing some movements. उसके बाद gradually you can start like increasing or whatever as per your body's need. So listen to your body and थोड़ा अपनी limits को बढ़ाना is. आई थिंक आपने जो सिखाया ना, बेस पॉइंट्स बनाइए. अगर अभी आप बेड से उठ के नहीं चल पा रहे तो पहले वो शुरू करिए, स्टार्ट करें, फिर आप वॉक शुरू करिए. So here I can't say कि हाँ आप इतने टाइम में इतना कर लो, बिकॉज ये बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ करती है. फेयर इनफ. कैन आई डू योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टुगेदर?
yoga and strength training together, yes, absolutely. In fact, ये हमेशा एक combined एक 360 degree approach ही होनी चाहिए, and it's a very beautiful combination. Like yoga will, you know, in some aspects it will help you, strength training will take care of the rest of the things, so it's a very lovely combination. Yeah, in fact, I can personally say I combine the two. So I do 3 days weight training and 3 days yoga. And yoga also a mix of vinyasa, whatever, like All the either different flows. hatha. So some element of meditation. So one day of the yoga. So एक पूरा mix बन जाता है. Mix, And like I said, मैं जब gym करती हूँ तो sore होती है body. अगले दिन जब मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो मेरी सारी soreness चली जाती है. Exactly, it balances it out, so that's why it's a good combination. I don't have time for yoga or gym, but I want to stay healthy. Is there a home workout routine for people? Let me answer. Follow Gunjan, and you'll get enough. Exactly. ideas. There are so many videos I've uploaded which are just focusing on home workouts without using any equipment, so those can help. This is interesting. I'm Jane, so my source of nutrition and diet options are limited. Can you help me with a perfect plan or options from where I can gather more protein? Yeah, so go back to your roots. I'm sure whatever your dadi, nani, they have been eating, वो एक बहुत ही balanced meal होता है. And if we talk about protein, yes, there are so many plant-based sources of proteins, be it soy, be it the regular daleं, chole, rajma that we consume. So yeah, all these sources can definitely help you. Just ensure कि हर meal में कुछ portion in protein-rich sources का हो. That's all. Fair enough. How are celebrities able to lose or gain weight quickly? Is there a hidden mantra? They're just more particular about what they eat, and of course they have, of course, resources, you know, a nutritionist, a diet, and that's because unko they always have to look and be a particular way. That's what their job demands, and so yeah, but they are more particular about what they eat. Yeah, but I think health एक ऐसी चीज़ है ना, to some extent तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम एक्टर हो, तुम नॉर्मल हो, तुम कुछ भी हो, इट्स इक्वली डिफिकल्ट टू डू इट. Absolutely. When it comes to following it, it's ह्यूमन इमोशंस तो वहीं पे ही है ना. इट्स जस्ट कि हाँ, आपकी नॉलेज चेंज हो सकती है, आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, दैट कैन चेंज, बट चैलेंजिंग तो उतना ही है. उतना ही है, राइट. Hey Gunjan, me and my family are overweight and I think I have received my genes from them. Can you help me beat my genetics and lose my weight? It might take a little more time for you than others, but yes, you can definitely, you know, make it better. So ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. Like I am a live story of it, live example of it. If I have done it, you can do it too, and I have helped so many people do it. Genetic weight loss doesn't mean that you cannot manage it, and that goes for genetic hair loss also. मैंने पिछले 2 महीने में अच्छा weight loss कर लिया है. Do I need to now continue with the same diet or can I have occasional junk food? Cheat days आ रहे हैं. Occasional junk food is absolutely fine, but you don't have to stick to a particular diet plan like for always. अपने जो भी, क्योंकि जब हम डाइट करते हैं और वेट लूज करते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं. सो नाउ इन मेंटेनेंस हम डेफिसिट नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी कैलोरी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, बट कैलोरी इंटेक बढ़ाना डजंट मीन जंक फूड के थ्रू बढ़ाना. थ्रू हेल्दी सोर्सेज यू कैन मे बी, I think nutrition per calorie. Yeah, nutrition per calorie. So calorie dense foods is what we're talking about. And the last one, I am heavyweight and I have PCOS. I don't think I will be able to lose weight because I have PCOS. So PCOS and weight, they are interlinked. You lose weight, your PCOS will get under control. So it works like that. But it doesn't mean that you cannot lose weight. That is the way to, you know, control your PCOD. So you can lose weight, you will control your PCOD. Your PCOD gets controlled, you'll be able to lose weight more easily. So the person who has PCOS has to, मतलब और ज़्यादा important to lose weight than normal people. Because if you'll not do it, your condition will get worsen and worsen day by day. But yes, you can. Answering your question in one word, yes, you can. I mean, definitely you can. I can be the biggest, supporter of this fact. Great. So Gunjan, we move to our last segment here, which is my favorite, and it's called the Fit and Shit round. Okay, I'm going to read out few things that I have here, and you have
these two cards that you Yeah. can raise and tell us fit or shit, Okay. right? Using a smaller plate while having food. Okay, Yeah, works. this helps. Okay. Cutting down on sugar and other artificial sweeteners. Yeah. Telling your friends you are lactose and gluten intolerant so that you didn't ruin your diet. So that you don't ruin your diet. I think it's better tell the truth. Yeah. But what if they push you and they force you? Yeah, then you can cook up anything. It's fine. If they're not understanding, then it's fine. Anything for not giving up the pact that you make for yourself. It could also be to open up your notes and write something. Exercise when I'm feeling stressed or anxious to clear my mind. Absolutely. Avoid eating food after 7 p.m. So again, I don't want to put any rules because I'm not a person who's. There are people who are doing like night shifts, who are working till late, so they may have to eat something late in the But evening. let's say also. I That's have fine. the option to eat before 7, after 7. In that प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए, सो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है. बट येस, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू देन इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन द साइकिल. Fair enough. Focusing on physical health and not on mental health. Big shit. Not just small. Yes. Working a 9 to 5 job and then going to the gym exhausted. Yeah, that's fine because that's going to release all your tension and all the stress. And remove the exhaust Yeah. out of your life. Exactly. Listening to music on your headphones while working out. That's absolutely fine. And that brings our fit and shit round to an end. That was a hit. Hit round. I agree. Hit round. I'd hit 1 hour with you, Gunjan. I don't know. I think I couldn't even track time. Thank you so much for coming, Gunjan, and helping us really break all the myths and do what the health to health. The Thank you feeling so is much. likewise, Saloni. I indeed had a great time interacting with you. And at times, when you discuss all these things, these are actually act as a reminder to yourself. So I found it really great, and I hope that it actually helps a lot of people out there and clears their doubts and a lot of other things. So thank you for having me today. It was lovely chatting with you. Thank you. Thank you so much for watching this entire episode. If you like this video, then don't forget to hit the like button. इसीलिए तो होता है like button. And subscribe to Traya Health.